The phenomena by virtue of which the phenomena by virtue of which a ray of light traveling from denser to rarer medium, ray of light traveling from denser to rarer medium is sent back in the same medium provided angle of incidence at the interface is more than critical angle is known as total internal reflection is known as total internal reflection. Seven six two eight seven five. कर लिया number note. So you can write as shown in the figure. As shown in the figure, when light moves from, as shown in the figure, when light moves from denser to rarer medium, when light moves from denser to rarer medium, it bends away from the normal and angle of refraction is more than and angle of refraction is more than angle of incidence. Angle of refraction is more than angle of incidence. If we increase the angle of incidence, then according to Snell's law, if we increase the angle of incidence, then according to Snell's law, angle of refraction will also increase. If we increase the angle of incidence, then according to Snell's law, angle of refraction will also increase. For one particular angle of incidence called critical angle, for one particular angle of incidence called critical angle IC, angle of refraction is 90. If the angle of incidence फिर लास्ट टाइम रिपीट कर दो. for one particular angle of incidence called critical angle, एक्सक्यूज मी सर. angle of जी, सर अंदर आना था, आ गया सर, उसको बोलना था, वहाँ नहीं रहा. for one particular angle of incidence called critical angle, angle of refraction is 90 degree. If the angle of incidence is
increased. If angle of incidence is increased beyond critical angle, the ray gets reflected back into the denser medium. The ray gets reflected back into the denser medium. The ray gets reflected back into the denser medium. This phenomena of reflection is total internal reflection. This phenomena of reflection is total internal reflection. अब total internal reflection हो रही है, that means for I is equals to IC. Using Snell's law. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F अगर रेयरर मीडियम एयर है, in denser medium is mu, then sin IC is where mu is refractive index of denser medium relative to rarer medium. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैं लोड नहीं हो रहा था, वो ब्रॉडकास्ट एक बार शुरू से दिखा सकते हो सर? स्क्रीनशॉट्स लेने थे। डायग्राम बनाए हुए हैं। सर एक बार दिखा दो, थोड़ा क्लियर नहीं थे। कर लिया ये? यस Next is
Applications of TIR. आप अगर किसी ऐसे रिजर्वर में देखो जहाँ पे बहुत सारी फिशेज हैं, से बीट गोल्डन टेम्पल या किसी भी टेम्पल में भी, तो आपको फिशेज जो है दूर नजर नहीं आती कभी। रीजन बीइंग, वो हमेशा नीचे देखो तो नीचे बहुत सारी फिशेज होती हैं जहाँ पे आप खड़े हो, मतलब यू कैन से एज पे उस वाटर रिजर्वायर के, तो वो सेंटर में क्यों नहीं होती? Why they're always near the edges? ऑब्जर्व किया है कभी कि वो एजेस के पास ही क्यों नजर आती हैं? इतना बड़ा पानी का पूल है तो बाकी सारी जगह क्यों नहीं जाती? ऑब्जर्व किया है कभी गोल्डन टेम्पल में या यहाँ पे देवी तालाब मंदिर में या किसी भी मंदिर में? इसका रीजन क्या हो सकता है? फिजिक्स बिहाइंड इट। पानी में फिश देखी है कभी आज तक जिंदगी में? पूल में किसी के देखी ही नहीं? Yes. देखी है? फिश देखी, फिश की इमेज देखी? आपने फिश देखी थी या फिश की इमेज देखी थी? इमेज इमेज देखी थी। इमेज में उसकी डेप्थ एक्चुअल डेप्थ होती है, एक्चुअल डेप्थ से कम होती है? जहां पे फिट है वही इमेज बनेगी या कहीं और बनेगी? कहीं और कहीं और बनेगी। बहुत सिंपल सा रीजन है उसका, तो मैं छोटा सा डायग्राम बना सकता हूँ। मान लो ये पानी है सारा और यहाँ पे मेरे पास फिश है। इसने लाइट रिफ्लेक्ट की, इसने लाइट रिफ्लेक्ट की, वो बाहर आ रही है, सो इट्स मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। Denser to जो फिश ने लाइट रिफ्लेक्ट की, दैट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। away from the norm. ये इसका एक्चुअल बात था, ये इसका एक्चुअल बात था, पर ये बेंड करके अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप फिश यहाँ पे, पर उसकी इमेज तो इधर बनेगी ना, उससे थोड़ी सी ऊपर। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे फिश है, ये आपको दिखेगी कब? व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय फिश रीचेस योर आईज, तभी दिखेगी। इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट अगर आप तक पहुंचेगी नहीं तो कैसे देखोगे? तो इसने लाइट रिफ्लेक्ट की, जो इसने लाइट रिफ्लेक्ट की वो रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर? डेंसर से रेयर जा रही थी। मान लो ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे थोड़ा सा भी मैं ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? टोटल इंटरनल लाइट बाहर नहीं आई तो आपको दिखेगी भी नहीं। इसका मतलब फिश आपको सिर्फ सर्कुलर पैच में से ही नजर आ सकती है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इधर से देखोगे तो फिश नजर आएगी, इधर से देखोगे तो नजर ही नहीं आएगी वो तो। इसीलिए आपको दूर नजर नहीं आती कभी, बिकॉज आपको इस रीजन में से ही नजर आनी है सिर्फ, जो नीचे फिश है। ये फिश यहां से नजर नहीं आएगी बिकॉज यहां तक लाइट पहुंच नहीं रही।
सिमिलरली इसको हम एक जगह SOS सिग्नल्स जो होते हैं, अगर आप पानी में डूब रहे हो तो SOS सिग्नल शुड ऑलवेज बी सेंड एट व्हाट एंगल? less than 9. मतलब आप मान लो स्विमिंग पूल में हो और आपको तैरना भी नहीं आता, आप घुस तो गए हो, जो लाइफ गार्ड है वो यहाँ पे खड़ा है, आप यहाँ पे डूब रहे हो, अगर मैं इसकी तरफ डायरेक्ट सिग्नल सेंड करूंगा SOS सिग्नल तो इसको नहीं मिलेगा, बिकॉज लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक. SOS signal is some kind of light which is used to send the signal. आप अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा कम एंगल रख दोगे तो इस तक सिग्नल पहुंच जाएगा. तो आपको उसको एम लेके सिग्नल नहीं सेंड करना कि आपको पता है कहाँ खड़ा होगा वहां, आपको हमेशा एट सम एंगल सेंड करना है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा कम, एंड दिस एंगल फॉर वाटर इज अराउंड 48 डिग्री IC की वैल्यू. अगर मैं आपसे पूछूं ये सर्कुलर पैच का एरिया कितना होगा, ये एंगल अगर IC है, दिस विल आल्सो बी IC. फिश की डेप्थ h, तो tan IC किसके इक्वल? Always. मतलब रेडियस इज h tan IC. एरिया कितना हो गया फिर? एरिया पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर IC. हमारे को ऑलरेडी पता है sin IC इज 1/μ. तो tan IC इज tan IC. तो perpendicular ओवर बेस, तो tan स्क्वायर IC कितना हो गया? 1/μ²-1. इसको हम कह रहे हैं दिस इज एरिया थ्रू विच फिश कैन बी सीन और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश. फिश को भी बाहर इतनी जगह से लाइट आती नजर आएगी, तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फिश हो गया कि वो इस रीजन से देख सकती है. इसका प्रैक्टिकली यूज करते देखा किसी को कि डेप्थ चेंज हो जाती है या इमेज वहां बनती है जहां पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह पे बनती है, ऑब्जेक्ट कहीं और होता है, उसकी इमेज कहीं और बनती है. इसका प्रैक्टिकल यूज देखा कभी किसी को करते हुए? फिजिक्स तो ढूंढनी पड़ती है कहाँ यूज हो रही है. आप में से कितने लोग बीच पे गए हैं? अब वहां पे कभी सी ईगल को फिश पकड़ते देखना, वो किसी एंगल पे आके पकड़ती है कि वर्टिकली डिप करती है? एंग वो सीधा आती है वर्टिकली पानी के सरफेस के Vertically ऊपर. आती है. वो वर्टिकली इसीलिए आती है बिकॉज अगर एंगल I 0 होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी लाइट की, ऑब्जेक्ट वहीं नजर आएगा जहां पे इमेज बन रही है, तो फिश को तभी पकड़ सकती है. अदरवाइज उसको इमेज नजर आएगी, वहां पे पकड़ने की कोशिश करेगी, वहां ऑब्जेक्ट होगा नहीं. तो फिश को ये कंसेप्ट पता है कि I को 0 रखेगी तो वो फिश को पकड़ सकती है, I को बदल देगी तो इमेज को पकड़ेगी और इमेज वाली जगह पे ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं. तो दैट्स व्हाई द ईगल जंप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सीधा नीचे की तरफ आती है फिश को पकड़ने के लिए. So diagram बना लो, then you will write. You can write first application field of view of fish. Field of view of fish और ये diagram बना लो. Field of view of fish.
So you can write, if fish is at a depth h below, if fish is at a depth h below the surface of water, if fish is at a depth h below the surface of water, the light reflected by the fish is moving from, light reflected by the fish is moving from denser to rarer medium, because water से air में जा रही है, from denser to rarer medium, and thus bends away from normal. The light reflected by the fish, the light reflected by the fish will come out of water surface only if light reflected by the fish will come out of water surface only if angle of incidence at water air interface, only if angle of incidence at water air interface is less than the critical angle. Thus we can conclude that light comes out in a circular patch. Light comes out in a circular patch with radius r. As shown in the figure. As shown in the figure. Tan IC is equals to r by h. R is equals to h tan IC. सर एक बार थोड़ा डायग्राम ऊपर कर दो प्लीज। डायग्राम बनाया नहीं अभी तक। सर म्यू और स्क्वायर माइनस 1 का आपने उल्टा लिख दिया। वो एक मिनट। और सर इसमें जैसे डेप्थ का भी कोई रूल होता है, मतलब जैसे अगर फिश बहुत ही ज्यादा डेप्थ डीप ही है तो है। फिर एच डेप्थ ही तो है। सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा डीप है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर डीप है, तो उसमें भी हमें दिख जाता है कि नहीं?
मतलब उसमें पानी इतना साफ नहीं होता, वैसे नहीं नजर आती, बिकॉज लाइट जो डिस्पर्स हो जाती है। बिकॉज पानी में इतनी क्लैरिटी भी तो चाहिए ना, बिल्कुल क्लीन पानी होगा तो नजर आ जाएगी, नहीं तो डिस्पर्स हो जाएगी लाइट पहले ही। 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो, जैसे आप सी में जाओ तो आपको 1 किलोमीटर तक तो रॉक्स भी नजर नहीं आ रहे होते, अनलेस आप किसी बहुत साफ बीच पे नहीं चले गए। इंडिया के बीचेस पे तो यही सीन रहता है। नेक्स्ट टू राइट। Optical fiber, second application. Optical fiber. Second, right. Optical fiber acts as a light pipe, and is based on total internal reflection. It consists of two parts. Core of denser medium and cladding of rarer medium. Core of denser medium and cladding of rarer medium. When light moves from बोला था कोर ऑफ डेंसिटी मीडियम एंड cladding of rarer medium. When light moves from core to cladding, it suffers total internal reflection. It suffers total internal reflection. And after repeated reflections, light comes out from the other side of pipe. इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात क्या बोला था? कहाँ तक लिखा आपने? कौन सा सेंटेंस? Total internal when light reflection. moves It suffers total internal reflection, and after number of reflection comes out from the other side. Optical fibers are used. A part. आजकल तो इसका excessive use हुआ है. Optical fibers are used for A part. These are used to study the interior of lungs. Fibrosis को practically check करने के लिए these can be very effective. कि lungs में जो कहते हैं कोविड से फाइब्रोसिस हो गया, so that can be checked. मतलब एक होता है स्कैन से देखो, एक होता है कि फिजिकली देखना अगर आपने. These are used to study the interior of lungs and other parts of the body, which cannot be viewed directly otherwise. Second is, these are used for study of tissues and blood vessels. These are used for the study of tissues and blood vessels far below the skin, far below the skin. Third is, it can be used to transmit high intensity laser light
स्टोन्स के लिए जो बताया था यूज करते हैं. It can be used to transmit high intensity laser light inside the body for medical purposes. Inside the body for medical purposes. Fourth is they are used in communication networks. For sending video signals. Because जहाँ पे high data transfer होता है for sending video signals. Third application. Third application, shine of diamonds. The shining characteristics of diamond can be explained. Shining characteristics of diamond can be explained on the basis of total internal deflection, the critical angle, for diamond air interface, तो डायमंड की बात क्यों हो रहा था? तो डायमंड the critical angle for diamond air interface is 24 degree. Approximate angle hota hai, then it depends on hardness of diamond also. The critical angle for diamond air interface is 24 degree. Thus, as this angle is small, the probability of total internal deflection is large. Therefore, light which enters the diamond from any one face, The probability of total internal deflection is large. Light which enters diamond from any one face, gets trapped inside diamond, due to total internal deflection. And this gives shine to the diamond. And this gives shine to the diamond. Mirage formation क्या होता है? Mirage formation is, अब mirage formation किसको बोलते हैं? Mirage. फिर डेजर्ट वाला डेजर्ट वाला, हाँ, वो क्या होता है? सब पानी नजर आता है दूर से, जबकि होता पानी है आता है दूर से पर होता नहीं। जैसे हॉट समर डेज में इंडिया में मिराज इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। हाईवे पे आपको आजकल तो बिल्कुल ही नजर आ रहा होता है, आप कभी भी हाईवे पे ट्रैवल करोगे यू कैन ऑब्जर्व मिराज। मीडियम जो होते हैं गेट्स ऑप्टिकली स्ट्रैटिफाइड,
Optically stratified means different layers have different refractive index. कैसे एटमॉस्फेयर्स की अगर मैं डिफरेंट लेयर्स लेता हूँ, नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं दे आर हॉटर एंड रेयरर, और जो अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं दे आर रिलेटिवली कोल्डर एंड डेंसर. मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पेड़ है यहाँ पे, इसने लाइट रिफ्लेक्ट की. इसने जब लाइट रिफ्लेक्ट की तो इट्स मूविंग फ्रॉम, अगर ये लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इट्स मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. डेंसर से रेयरर. डेंसर से रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया नेक्स्ट लेयर पे, इट अगेन सर्फेस. एक लेयर आएगी वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स क्रिटिकल एंगल. और ये लाइट ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ये जो पेड़ है इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी यहाँ पे, inverted. These inverted images gives the appearance of water due to distortions in atmosphere. अगर एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंसेस ना हो, डस्ट ना हो, डिस्पर्शंस ना हो, तो आपको सड़क पे उल्टे पेड़ नजर आने चाहिए थे, बट बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन इन द एटमॉस्फेयर दैट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ वाटर. इसका एक एग्जैक्ट रिवर्स फिनोमेना होता है जो इंडिया में ऑब्जर्व नहीं होता नॉर्मली, विच इज रैपिड एज लूमिंग ऑफ शिप्स. कि अगर हम कोल्डर रीजन्स में चले जाएं हॉटर की जगह, तो कोल्डर रीजन्स में होता है लेयर्स इन कांटेक्ट विद अर्थ दे आर डेंसर एंड कोल्डर, कि नीचे वाली लेयर्स डेंसर है, कि जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में है उनका टेम्परेचर कम है, कोल्डर है. गर्मियों में मतलब इंडिया में होता है कि नीचे वाली लेयर्स हॉटर, बहुत ज्यादा ठंड जहां पड़ती है नीचे वाली लेयर्स दे आर कोल्डर एंड डेंसर, अपर लेयर्स आर हॉटर एंड रेयरर. मान लो यहाँ पे एक शिप है, इसने जो लाइट रिफ्लेक्ट की इट्स मूविंग फ्रॉम नीचे से ऊपर अगर जाएगी तो डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. एक पर्टिकुलर लेयर जहां पे एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, दिस लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स, और ये जो शिप यहाँ पे था इसकी इमेज बन जाएगी इधर. तो आपको शिप यहाँ नजर नहीं आएगा, आपको हवा में नजर आएगा. दैट्स व्हाई वी कॉल लूमिंग ऑफ शिप्स. आपको हवा में शिप चलते नजर आते हैं. सो एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर -30 -20 इस तरह से होगा. यू कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना कि जो शिप सरफेस पे चल रहा है, पानी में चल रहा है, आपको वो हवा में चलता नजर आता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो ये दोनों को कल लिखते हैं, मिराज फॉर्मेशन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को. ऐसे आर्टिकल्स मतलब अब टर्म 2 में तो आ सकते हैं बिकॉज ये टर्म 2 के सिलेबस में आएगा. ऐसी चीजें जितनी टर्म 1 में थी वो सब अब नहीं आएंगी बिकॉज ये तो थ्योरी के आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, लूमिंग ऑफ शिप्स क्या होता है. सो कल लिखेंगे इन दोनों को, लूमिंग को और मिराज फॉर्मेशन को.